हेलो एंड वेलकम टू वाई ओनली फेमस। आई एम अंकुर अग्रवाल। पिछले बहुत सारे दिनों से मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे, वाई ओनली फेमस का एपिसोड 2 कब आ रहा है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आई वाज गेटिंग, दैट हु इज द नेक्स्ट गेस्ट ऑन वाई ओनली फेमस। टुडे वी हैव a very special guest whose profession is a dream of many. It's an honor to have Siddharth with us on Why Only Famous. Siddharth is an IPS officer. He has undergone extensive preparation and he has studied long hours to achieve this feat. Becoming an IPS officer is not an easy task. So we are very curious and excited to know how he has achieved this success and how was his journey to become an IPS officer. Siddharth has completed his graduation in petroleum engineering, and before becoming an IPS officer, Siddharth has worked in oil and gas industry and he has also experience in edtech sector. Siddharth, welcome to Why Only Famous. I'm really thankful to you कि आपने अपने busy schedule में से टाइम निकाला हमारे साथ ये डिस्कशन करने के लिए। मैं सबको बताना चाहूँगा कि Siddharth is a very good friend of mine. I know him from last 3 to 4 years if I'm not wrong. And with this short period of time, we have created a nice bond. And the reason Siddharth is here on Why Only Famous, as everyone know, UPSC exam is a big thing in India. And there are thousands and lakhs of students who prepare every year for UPSC. And बहुत सारे challenges face करते हैं वो. क्योंकि सिद्धार्थ बहुत सारे challenges face कर चुके हैं और इन्होंने ये एग्जाम क्लियर किया है, तो मैं सिद्धार्थ के थ्रू उन स्टूडेंट्स को जो प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, उनको अवेयर कराना चाहता हूं कि यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के लिए किस तरीके से पढ़ाई करनी होती है, क्या क्या चीज़ों का सामना करना होता है, एंड जो एक डर होता है कि एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा, मैं उनके मन से ये डर मैं चाहता हूं कि हट जाए जानने के बाद कि सिद्धार्थ ने कैसे तैयारी की। इतना मुश्किल भी नहीं होता पर इतना आसान भी नहीं होता। Before we start this introduction and question answer round, I would request you to tell our audience something about yourself. Thank you, Ankur. I'm Siddharth. I'm an IPS officer of 2019 batch and I'm posted in Assam. So Siddharth, my very first question to you is, how do you differentiate between success and fame? Success and fame. Ankur, success is a very subjective thing. It's more an inward thing. While being famous is an outward thing. Success could be different for anybody. For example, if somebody is just happy making paintings, he's successful. He considers himself successful. But being famous is how the world perceives you. So there's a drastic difference. It's like comparing apples to oranges. I'm assuming that many people don't know what UPSC is. So can you tell the audience something about UPSC? So UPSC is a constitutional body in India which conducts exam for lot of top civil services positions in India. So civil services examination is one of the exams that UPSC conducts. And that was one exam I gave and got through. And what is the eligibility criteria to participate in this exam? There's no defined eligibility criteria. If you have a graduation in any of the streams, you're eligible to give the exam. And how many attempts a student can give to participate in UPSC exam? So attempts vary based on the category you're coming from. So it starts from 6 and goes above that also. So it's different for different people. So can you tell us about the services that falls under UPSC? Okay. So there are a lot of services that fall under this. So primarily what people are more aware is IAS, IPS, the foreign services, the forest services. But these are the more glamorized ones. There are other services like the trade services. There's defense account service, the defense estate services. So all of these services come under the umbrella of UPSC exams. So सिद्धार्थ, इस इंटरव्यू को करने से पहले मैंने भी थोड़ा सा यूपीएससी के बारे में रिसर्च किया, एंड ऑल थैंक्स टू गूगल. सो आई केम टू नो कि यूपीएससी एग्जाम में 3 स्टेजेस होते हैं. सो आप थोड़ा बताएंगे उन तीनों स्टेजेस के बारे में? श्योर. तो एग्जाम के 3 स्टेजेस, प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू होता है. प्रिलिमिनरी इज मोर और लेस एन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ पेपर. मेंस में आपके रिटन आंसर्स होते हैं जैसे स्कूल में लिखा करते थे. एंड इंटरव्यू इज मोर ऑफ अ पर्सनैलिटी टेस्ट. देयर इज अ बोर्ड, दे कम टॉक टू यू, दे गेट टू नो यू.
So these are the main 3 stages of the UPSC exam. So in all these 3 stages, which one do you find is the most difficult or most exciting one? So these are 2 different things. Difficult is different and exciting is different. But yeah, usually I found prelims to be the most difficult. Reason being, prelims is not a selection game. It's an elimination game. So say for example, 8 lakh students are sitting in the prelims exam. Some 12,000 odd people get to write the mains exam. So prelims is a little difficult. Mains has a different set of skills which you need to write the answer. So वो अलग गेम हो जाता है. And again, interview is a different game. सबका अपना मजा है, सबका पढ़ने का तरीका अलग है, and सबकी जर्नी अलग है. एक जस्ट स्मॉल फनी क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क. बहुत सारे ऐसे हम लोग बचपन से जोक सुनते आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी जोक्स आते हैं. यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्या ऐसा रियल लाइफ में होता है यूपीएससी इंटरव्यू में? नहीं, ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चीजें आती रहती है, ऐसा कुछ होता नहीं है. कुछ भी बना के व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रहा है, बट इंटरव्यू इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग. आई वोंट इवन कॉल इट एन इंटरव्यू, इट्स अ पर्सनैलिटी टेस्ट. तो ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते. दे आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट आपने पहले क्या किया है, क्या पढ़ाई करी है, जॉब करी है तो क्या करते थे, एंड देन दे आस्क यू कि यार ये करंट अफेयर्स में ये चीज चल रही है, यू नो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट. सो दैट्स व्हाट द पर्सनैलिटी टेस्ट इज अबाउट. तो सिद्धार्थ, आपको कितने अटेम्प्ट्स लगे यूपीएससी क्लियर करने में? मुझे 3 अटेम्प्ट लगे. तो पहले 2 में तो प्रीलिम्स में नहीं क्लियर हुआ. उसके पीछे भी एक स्टोरी है. तो आई वॉज ऑलवेज काइंड ऑफ गुड इन एकेडमिक्स. तो मैं ना थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था. अच्छा. मैंने कहा यार बाकी कर लिया तो ये तो निकाल ये भी हो जाएगा. तो एटीट्यूड में चले गए पेपर देने. ऑफ कोर्स नहीं होना था. तो पहले 2 अटेम्प्ट तो ऐसे निकाल दिए. फिर लगा कि नहीं, पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सीरियसली इसको. देन तब बैठा मैं, पेपर को स्टडी किया, सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना चाहिए. जो लोग सेलेक्ट हो गए थे उनसे बात करी. And then वो attempt I gave everything that I had. Probably that's the reason third time पे I got selected. अगर थर्ड में भी नहीं होता तो क्या आप दोबारा अटेम्प्ट देते? नहीं, मुझे पता था मैंने सब कुछ दे दिया इसके अंदर. अच्छा. अब कुछ बचा नहीं है. एंड देन लाइफ के जो प्रेशियस ईयर्स होते हैं ना, स्टार्टिंग 10 years ऑफ योर करियर, मैं नहीं चाह रहा था कि मैं एक एग्जाम के पीछे वेस्ट कर दूं. तो मेरा क्लियर था कि या तो ये नहीं हुआ तो कुछ और करेंगे. कैसा फील हुआ जब आपने देखा रिजल्ट क्लियर हो गया? आई मीन रिजल्ट भी स्टेजेस में आते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू. तो वो तीनों स्टेजेस कैसे लगे आपको? क्योंकि आपका फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में आपने बताया कि आपका क्लियर नहीं हुआ था, प्री भी नहीं क्लियर हुआ था. तो प्री क्लियर हुआ, फिर मेंस क्लियर हुआ. तो उस टाइम पे कैसी फीलिंग हुई आपको? ऑफ कोर्स अच्छी फीलिंग थी. तो मेरे क्या कोइंसिडेंस बैठा मुझे पता नहीं. जब प्रीलिम्स रिजल्ट अनाउंस हुआ तब भी मुझे पता नहीं था रिजल्ट अनाउंस हो गया है, क्योंकि मैं अपने होम टाउन में था. एंड उस दिन कोई दूसरा गवर्नमेंट एग्जाम चल रहा था, तो इंटरनेट सर्विसेज डाउन थी. ओके. तो रिजल्ट अनाउंस हो गया, 2 घंटे तक मुझे पता नहीं. एंड सिंस मेरे किसी फ्रेंड को पता नहीं था कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ, तो नोबडी इवन कॉल्ड मी अप. ओके. 2-3 घंटे बाद मुझे पता चला कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है, मैं क्लियर हो गया. सेम चीज मेंस के रिजल्ट के टाइम पे हुई. आई वाज हैविंग अ वेकेशन विद माय फैमिली इन हांगकांग. एंड हांगकांग में देयर इज अ बुद्धा स्टैचू. या. सो यू टेक a big road on the top, and वहाँ नेटवर्क वगैरह नहीं आता. एंड उसी टाइम पे मेंस का रिजल्ट आ गया. ओके. तो जब तक मैं पहाड़ से नीचे नहीं उतरा मुझे पता नहीं था मेंस का रिजल्ट आ गया. तो वो भी मुझे 2 या 3 घंटे बाद जाके पता चला कि अच्छा मैसेज आ गया है. दैट्स हाउ आई केम टू नो. एंड प्रीलिम्स ये जो इंटरव्यू है उस टाइम तो सबको पता रहता है, क्योंकि 1-2 दिन पहले से हलचल होने लग जाती है. देयर इज एस्टिमेशंस गोइंग अराउंड कि कब आ रहा है कब आ रहा है. तो वो पता था. एंड उसके 2-3 घंटे पहले से हालत खराब थी. लाइक ऑलवेज चेकिंग यूपीएससी का कि कब आ रहा है कब आ रहा है. सो या. तो आपने मतलब क्या बहुत डिस्क्रीट वे में तैयारी की थी? आपने बोला दोस्तों को भी नहीं पता था कि आप तैयारी कर रहे हो? हाँ, एक्चुअली हुआ क्या ना कि आप यूपीएससी एग्जाम इंडिया में देते हो ना, तो एक अनवांटेड आपके ऊपर प्रेशर बन जाता है. या प्रेशर आ जाता है दोस्तों का, फैमिली का, राइट, कि अरे लड़का कलेक्टर बनने जा रहा है. एंड देन अनड्यू एक्सपेक्टेशंस हो जाती है. एंड देन हो जाता है, then everybody likes it. अगर नहीं होता है तो then there is a stigma attached कि अरे बड़ा कलेक्टर बनने निकला था. So I thought I'll keep it to myself. हो गया तो पता चल ही जाएगा सबको. ठीक बात है. नहीं हुआ तो there is other things to do in life. तो इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया. In fact, only my immediate family knew. None of my friends knew. And वो 1 साल का जो प्रिपरेशन का टाइम था, I was kind of living a double life.
Okay. because nobody was knowing. People were thinking I'm working, which I was, but then दिन का काफी टाइम पढ़ाई में निकल I think this is very important for the students जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं. अगर वो इस तैयारी वाले पूरे सेशन को ना अपने में ही रखें, ज्यादा शोर ना मचाएं, तो उनके ऊपर भी प्रेशर कम होगा. हाँ मतलब एक तरह से सही है, बट इट्स मोर ऑफ अ पर्सनल चॉइस. मुझे लगता था कि जितने कम लोगों को बताऊंगा उतनी शांति रहेगी, बट ऑन द फ्लिप साइड प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि अगर किसी को पता नहीं है आप तैयारी कर रहे हो, तो देन आपको तो इनविटेशंस आएंगे, कभी कोई घर का फंक्शन हो गया, किसी की बर्थडे पार्टी हो गई, दोस्त का बर्थडे है, सो आप मना कैसे करोगे? सो वो मेरे लिए बहुत स्ट्रगल था कि मैं उसको बैलेंस कैसे किया. तो एक ये पर्सनल डिसीजन है आपको बताना है या नहीं बताना, बट आई स्टक विद इट कि मैं नहीं बताऊंगा किसी को. ओके. तो रिजल्ट आने के बाद भी मैंने सुना है क्यूरियोसिटी खत्म नहीं होती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि आपको कौन सी सर्विसेज मिली है. तो कितना टाइम लगा ये जानने में कि कौन सी सर्विस मिली? रफली आप मान लो 2 महीने बाद आ जाता है आपका सर्विस एलोकेशन. देन यू एक्चुअली नो कि आपको क्या सर्विस अलॉट हुआ है, बट मोर लेस रैंक देख के आपको कहीं ना कहीं आइडिया आ जाता है कि ये मिलने वाला है. बट श्योरिटी तभी होती है कि आपके नाम के आगे IPS लगने वाला है या लग गया. या श्योरिटी तब मिलती है, दैट्स अ गुड मोमेंट. नेशनल पुलिस एकेडमी, अ वेरी फैसिनेटिंग प्लेस. कैसा था वहां पे जब आप एंटर किए? कैसा फील हुआ वहां जाने के बाद? अंकुर, फैसिनेटिंग दूसरों के लिए, जिनकी ट्रेनिंग हो रही होती है अंदर, दे नो कि हालत क्या खराब होती है. But of course, it's a wonderful place. It's difficult. The training is very difficult. There's physical training, there's theory, there are classes. So, but it's a great place to be because you form bonds, you form friendship with your batchmates. You do stuff together. You run 16 kilometers. You do a 40-kilometer route march with your friends. Okay. I don't think that experience you can get anywhere. So if to be precise, अगर थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहेंगे, कैसा था एक्सपीरियंस? किस तरह की ट्रेनिंग की आपने? So like entire ट्रेनिंग में बताऊंगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, but I'll tell you what a typical day in NPA looks like. So we usually get up say around 4:30 ish. Okay. जिसका जैसा शेड्यूल रहता है. Then you get up, go out, have your basic banana, milk, whatever you want to have. And then उसके बाद आपको PT ग्राउंड जाना पड़ता है. So that's called the physical training part. So you go there, you have an attendance, and God forbid अगर किसी ने वो attendance मिस कर दी तो फिर उसकी क्लास लग जाती है. तो बंदूक उठा के राउंड लगाने पड़ते हैं. हाँ मतलब आप ऐसे ही समझ लो जो आपने वैसा भी होता है. More or less ऐसा नहीं है कि बंदूक उठा के, but then they ask you कि why are you late and all of that. So nobody wants to miss the morning PT until unless you are like really not well. So then you have your morning PT exercise for around 1.5 hour. So वो खत्म होती है, we go back to our mess, we have our breakfast, get ready, put on your uniform, and then go to the classes, which are the theory classes. So we study IPC, CRPC, Indian Evidence Act, and general purpose policing कैसे की जाती है. So those classes go on, and compulsorily we have to do those classes in our uniforms. So that starts around, if I remember correctly, 9 बजे start होती है and it goes all the way till 1:30. 1:30 से 2:30 बजे का हमको एक ब्रेक मिलता है जिसमें हमको लंच भी करना है, रेस्ट भी करना है. Then 3 बजे there's another fallen जिसमें हमको second phase of physical activity होती है. Okay. So that gives you shooting, firing, jungle operation सिखाते हैं, drill करना सिखाते हैं. Drill in common languages, the parade that we see, how we salute, how we walk. So that's called a drill. So ये classes शाम तक चलती है, and then again you have to go back to your mess, change, put on your sports uniform, come back, play a sport for 1 hour. It could be football, it could be basketball. We don't play cricket. And there's volleyball, there's hockey, whatever you want to play. And then the day ends at 6:30. We go back. अगर थोड़ी एनर्जी बची है तो जिम चले जाते हैं, अच्छा उसके बाद जिम के लिए भी टाइम मिल जाता है. अब वो एनर्जी बचती है. हाँ मतलब if somebody wants to do it, maybe pursue a hobby, maybe read a book, whatever. And since वापस अगले दिन सुबह उठना है, more or less 8:30-9 बजे खाना खा के everybody sleeps. So that's a typical schedule. Apart from that, there are all of the other activities that we do. So there's the most interesting part is something called the greyhounds attachment. Okay.
So in Greyhound's attachment, what they do is they divide you into squads, and every squad goes to the jungle, and you have to survive there for a week. You have rice, you have potatoes, you have Maggie. So you have to do your own cooking. Yeah. You have to, collect dry leaves, dry sticks. Okay. Get them. Start the fire. आदिवासी वाला जीवन भी जीना पड़ता है. हाँ मतलब लाइक एकदम प्रिमिटिव वे में. हाँ. खाना खुद बनाना है आपको वहीं रहना है, वहीं सोना है. बेड भी मतलब बेड तो नहीं, ऑफ कोर्स बेड नहीं है. इट्स लाइक देयर इज अ जिसको हम त्रिपाल बोलते हैं, तो प्लास्टिक जैसा होता है. राइट. उसमें we stay, we sleep, and that's not even a tent. So basically what happens, we work in buddy pairs. Okay. So त्रिपाल में क्या होता है, so two buddies, दो त्रिपाल, एक छत लगा देता है, एक नीचे बिछा देता है. सही. And that's how we said that's a very interesting part of the training. Yeah, it's sounding very interesting. Yeah, it's like man versus wild. तो आपने जैसे यूनिफॉर्म की बात की, आपने फायरिंग की बात की, तो अभी आई एम श्योर यू मस्ट बी वेरी यूज्ड टू ऑफ वेयरिंग द यूनिफॉर्म एंड हैंडलिंग द गन्स. जब पहली बार यूनिफॉर्म पहना था और पहली बार गन हाथ में उठाया था, वो कैसा था? Yeah, it's fascinating because these are the things when you see in movies, you always want to do it, right? So of course, wearing your uniform for the first time, you get a sense of pride that ये uniform earned करी है मैंने. That feeling is like fantastic. Clicking pictures, sending to your families. Pictures, getting on social media, sending to your families, and then I'm sure it must be a proud moment. Yeah, you get such cool responses from your friends and family. So yeah, you like that. And then the weapon part, holding the weapon for the first time, it's actually not exciting. It's very scary. Okay. Reason being, when you are having a weapon in your hand, there's a lot of responsibility attached to it. Right. So we think it's exciting at times, but trust me, it's very scary. At least for the first time. So when did you decide that you want to prepare for UPSC, and how this thought came in your mind? Frankly, अंकुर, मेरा ऐसा कोई मोमेंट आया नहीं लाइफ में. अच्छा. कि मैंने ऐसे डिसाइड कर लिया कि IPS बनना है, because I've never seen this life. I didn't even know what civil services was like. So ऐसा कोई मोमेंट था नहीं. But when I joined my first job, the head of our company is an IS officer. So the way I saw the kind of work he's doing, the kind of diversity he's getting, that time a very vague thought came in my mind. Like this is something I can pursue. But then ऐसा कभी हुआ नहीं. So one day when I was like 2-3 attempt इसी vague thought में मैंने दे दिए बिना पढ़े लिखे. So post my marriage, one fine day I was just sitting with my wife having my evening tea, and ऐसे ही मैंने कहा यार, should I give it a try again? And she said, yeah, if you want to do, like, by all means. And वो पता नहीं क्या मोमेंट था कि अगले 1-1.5 घंटे में मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस बार एग्जाम पूरा सीरियसली दूंगा. मैंने ये भी नहीं पता था कि क्या पढ़ूंगा क्या नहीं करूंगा. We just decided कि दे देते हैं. And that's how I just started preparing. And then वो 1-1.5 साल प्रिपरेशन का, सिलेक्शन का, it just passed in like seconds. मुझे नहीं पता चला, वो बस निकल गया. And that's how, मतलब some people have this dream from their childhood. Yeah, right. ये बनना है मुझे. नहीं, frankly मेरा ऐसा कुछ नहीं था. Like there was no drama attached to me being an IPS officer. हाँ, नहीं तो मैं जनरली यही सुनता हूँ, बचपन से सपना था मैं बड़ा होके पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ. नहीं ऐसा मेरा कुछ वो वाला नहीं था. Tell me about your previous jobs before you became an IPS officer. तो उससे पहले आप कहाँ जॉब करते थे? So Ankur, my first job right out of college was a PSU called Gujarat State Petronet Limited. So I was selected there through campus placement, and then I was looking at the procurement part, all the buying for the company. So since I was an engineer, we used to do the technical evaluation for whatever stuff we were buying. Okay. So that was my first job. Then I worked there for around 2 years, and then I thought, okay, maybe venture out in other fields as well. Yeah. And then I got into EdTech. I got into the digital space. Did that for some years.
had a great time, had a lot of learning, because that was like a completely different domain for me. I never knew how these things work, how the digital economy works, how e-commerce works. So that was like a very amazing feeling. And then वो करते करते the UPSC wala time came, and meanwhile I was preparing for UPSC. My work, luckily my wife handled it. Okay. So that was my experience before entering the civil services. जनरली सुनने में आता है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए 18 घंटे की पढ़ाई करनी होती है. सो व्हाट वाज योर स्टडीइंग स्टाइल? कैसे पढ़ाई करते थे आप? क्या आप भी वो 15 घंटे 18 घंटे बैठे होते थे? हाँ, आप व्हाट्सएप की मानो तो 25 घंटे पढ़ने पड़ते हैं. अच्छा. बट फ्रैंकली ऐसा कुछ नहीं है. थोड़ा सा एग्जैजरेटेड लगता है मुझे कि 18 घंटे पढ़ना, 19 घंटे. इट्स ह्यूमनली नॉट पॉसिबल to study 18 hours a day. Maybe you can do that for 2 days or 3 days at a stretch. But then 1-1.5 साल की जो journey है, it's not possible because you have to eat, you have to sleep, you have other stuff to do. But more or less आप मान लो कि if somebody is giving say around 8 to 10 hours of serious study on an average, I think it's sufficient. And it could vary. I'm saying average. किसी दिन 4 घंटे पढ़ोगे और किसी दिन आप 12 घंटे भी पढ़ लोगे. But average 8 to 10 hours is a good time. वीकेंड्स भी आएंगे, आप फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करोगे. आपको you have hobbies to pursue. You need to take your mind off because of the stressful part of the preparation. So you have to do other stuff. प्रिपरेशन कैसे किया आपने? आपने खुद से पढ़ाई की या आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से हेल्प लिया या ऑनलाइन मटेरियल पे आपने फोकस किया? कैसे किया? कोचिंग मैंने कुछ टाइम करी थी, बट मैं गया नहीं. आई थिंक मैंने 15 या 20 दिन क्लास अटेंड करी होगी. ओके. एंड देन आई रियलाइज्ड आई एम नॉट मेंट फॉर इट. आई एम श्योर द कोचिंग इज फैंटास्टिक, बट आई वाजंट अकस्टम्ड टू दैट मॉडल ऑफ कोचिंग. सो आई थॉट मे बी मैं घर बैठ के पढ़ लेता हूँ. सो देन आई गॉट ऑन टू द इंटरनेट. There's abundance material on the internet. I handpicked some of them. Okay. And I sat and studied at home. There was YouTube, there's Google. So अगर पढ़ना चाहो तो आप इस सबसे पढ़ सकते हो. Like कोचिंग की ऐसी जरूरत मुझे फील नहीं होती है. So you mean online material plays an important role? Yeah, because एक टाइम था जब ऑनलाइन मटेरियल नहीं मिलता था. So इंडिया में हर जगह से लोग दिल्ली से कोचिंग मटेरियल मंगाया करते थे. Times have changed, things have changed. अब सब इंटरनेट पे है, सो कहीं पर भी बैठ के पढ़ सकते हो. एंड प्लस देयर लॉट ऑफ कंपनीज हु आर टीचिंग ऑनलाइन नाउ. सो इफ समबडी वांट्स टू डू इट, वो कहीं भी बैठ के एनी कॉर्नर ऑफ इंडिया पढ़ तो सकता है. जज्बा है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है. एक्चुअली स्पेशली इन दिस डिजिटल वर्ल्ड आई थिंक सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन. या एंड अनदर एस्पेक्ट टू दिस इज दिल्ली आके पढ़ना इज अ वेरी फाइनेंशियली ड्रेनिंग प्रोसेस. या Because if you come and study in Delhi, there's high tuition fee, there's high cost of living, high cost of food and other stuff. But if you're studying from your home, a lot of this is taken care of because you're staying with your family. Agreed. Plus there's an emotional support system for your family. So I think that's a more efficient way to prepare for UPSC. You get a better food, you get a better environment. Yeah, food is always there. Like food is, I mean, very important. You get the homely food, like nothing like it. Mock test दिए आपने? हाँ, बहुत सारे. Prelims में तो बहुत सारे दिए. अच्छा. Mains में भी दिए. क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो, आपको गलती तभी पता चलेगी जब आप पेपर में गलत करके आओगे. So जब पेपर में एक बार गलत कर दिया, तो हमेशा याद रहेगा कि यार ये मैंने उस पेपर में गलत लिखा था, तो अभी इसको सही करना है. So mock test is like the most important part of your preparation. जितने दे सकते हो prelims के लिए, mains के लिए, I think that's a very important part. तो जितने टेस्ट दे सकते हैं दे दो. तो mock test और real test कितना similar या कितना different होता है? पेपर के कंटेंट में ज्यादा फर्क नहीं होता. क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं, but more or less पैटर्न सिमिलर होता है. सब्जेक्ट्स तो सेम ही है. डिफरेंस आ जाता है माहौल के अंदर. आप मॉक टेस्ट अपने घर के कन्वीनियंस से दे रहे हो, राइट, थोड़ा सा लेट बैक होके देते हो. बट जब आप रियल टेस्ट में जा रहे हो तो एक तो प्रेशर होता है कि ये साल भर पढ़ाई करी है, बिल्कुल जो है आज करना है. दूसरा होता क्या है, स्पेशली जहां से मैंने दिया था, मई जून का महीना होता है, इट्स हॉट, इट्स राइट. तो गर्मी के अंदर बैठ के पेपर देना, दिस हाइड्रेशन इशू, दिस प्रेशर, and plus you see so many people who are competing, right?
आप अपने हॉल में देख रहे हो इतने सारे बच्चे एक रूम से पेपर दे रहे हैं, एंड हो सकता है उस रूम में से एक बंदा भी प्रीलिम्स क्लियर ना करे. व्हेन यू सी दैट स्केल, राइट, इट्स स्कैरी. मतलब अगर 500 लोग बैठे हैं तो देयर आर चांसेस कि वो 500 के 500 में से शायद किसी का भी ना हो. एंड व्हेन दैट थॉट हिट्स यू, वो ना, योर हैंड्स स्टार्ट स्वेटिंग, दिस प्रेशर, दिस टेंशन. बट देन अगेन आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हो, दैट्स हाउ यू. So shifting from mock test to mock interview, like you said, mock test is very important. Yeah. Mock interview कैसा होता है? Mock interview, I'm not a very big fan of mock interviews. Because mock interviews जो लोग ले रहे हैं, more or less एक similar lines पे लेते हैं. Okay. But हर mock interview में आपको अलग feedback मिलेगा. तो आप जब सबके feedback लेने लग जाओगे, तो आप अपनी originality खो दोगे. Right. आप मशीन बन जाओगे. उसने कहा था हाथ ऐसे रखना है, हाथ ऐसे रखेगा, कोई बोलेगा आपको बोलना है ऐसे, आप ऐसे बोलेंगे, एंड देन आप अपनी ओरिजिनलिटी भूल जाओगे. एंड वही आपके मेन इंटरव्यू में रिफ्लेक्ट होने का, क्योंकि आप डरे हुए होगे, आपको लगेगा उन्होंने ऐसा कहा था, मेरे को ऐसा करना है. So, ज्यादा मॉक इंटरव्यूज नहीं लेने, एक या दो ले लो, तो फील आ जाता है कि 4 लोग के सामने बैठ के जवाब देना कैसा होता है. बट उतना ही इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा बढ़ाने से ना आप अपना खो दोगे, जो नेचुरल टच है वो खो दोगे. जितना नेचुरल, जितना कैंडिड आप रहोगे, एकदम कैंडिड, बट नॉट ओवर कैंडिड. या रियल इंटरव्यू का कुछ एक्सपीरियंस बताओ आप अपना, कैसा था, कितने लोग बैठे हुए थे, एंटर किए तो कैसा फील हुआ, डर लग रहा था, नहीं लग रहा था, चेहरे पे नर्वसनेस थी या उसको छुपाने की कोशिश कर रहे थे? तो रियल इंटरव्यू मेरा सुबह का स्लॉट था, आई थिंक 10:30-11 बजे का इंटरव्यू दिया था मैंने. एंड फेब का टाइम था, तो इट वाज लिटिल कोल्ड. Okay. सुबह I reached the center. You go inside, documents आपके check होते हैं, and then you're asked to wait in a hall. And then they call your name कि आपका है. तो वहाँ पे क्या बहुत सारे boards बैठते हैं. So one of the board is allotted to you. That these are the 5 folks or these are the 6 people who will take your interviews. The people who take the interviews are ex-bureaucrats, ex-military men, people from different facets of life, could be education. So वो आपका इंटरव्यू लेते हैं. सो व्हेन यू गो इनसाइड योर द इंटरव्यू रूम, ऑफ कोर्स यू आर स्कैर्ड, बट देन आपको वो मैनेज करना है, आपको अपना इमोशंस मैनेज करना है. यू हैव टू बी काम. सो आप डीप ब्रेथ लेके अंदर जाते हो, एंड देन यू आर आस्क्ड टू टेक अ चेयर, यू ग्रीट एवरीबॉडी, एंड आपका एक डैफ होता है जिसको बोलते हैं डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, इफ आई एम राइट. सो डैफ आप पहले भर देते हो, एंड वो बोर्ड के पास होता है. सो दैट हैज ऑल द डिटेल्स कि आपने नाम क्या है, आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई है, आपने जॉब किया है, हॉबीज क्या हैं, आपके लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स हैं क्या, कोई डिस्ट्रिक्ट स्टेट कुछ जीते हो, एंड ऑल ऑफ दैट. सो दे हैव दैट डेटा. सो वही है सोर्स जहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे. तो वहीं से आपके सवाल बनते हैं. तो मान लो आपने जॉब करी, तो पूछेंगे कि आपने कहाँ जॉब करी, अच्छा क्या सीखा वहाँ पे, क्या चैलेंजेस है. नहीं तो आपकी हॉबी किसी ने बोल दिया रीडिंग है, तो उसके बारे में पूछ सकते हैं, राइटिंग, गिटार, व्हाटएवर. सो एक बार वहां से क्वेश्चन पिक हो गए, देन द कन्वर्सेशन कंटिन्यूज. बात से बात निकलती है, एंड वो आधा पौना घंटा कहाँ निकल जाता है पता नहीं चलता. तो कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे आंसर नहीं पता, तो क्या किया उस टाइम पे? मैं तो मना कर दिया साफ. कैसे बताओ, सब कुछ तो नहीं पता हो सकता. तो when they ask you question, आपको नहीं पता, तो rather than bluffing, आप simply मना कर दोगे, sorry I don't know, maybe I'll go back and check. And मेरा तो इतना weird experience था, मैंने back to back 5 सवाल मेरे को नहीं आते थे. And basic एकदम, and आते भी थे तो वो nervousness के चक्कर में मेरे अंदर से निकल नहीं रहा था. मैंने कहा nervousness में अगर मैंने आधा जवाब दिया तो वो backfire हो जाएगा. So I said sorry sir I don't know, and we moved on from there. चौथे सवाल पे जब मैंने मना किया ना, तो आई स्टार्ट फीलिंग कुछ समथिंग इज नॉट राइट. अंदर से फीलिंग है. बट मैंने कहा कि अब ये रास्ता पकड़ लिया है, तो मना कर दो. 5वें से द कन्वर्सेशन पिक्ड अप अगेन, एंड देन इट वेंट स्मूथ. कोई ऊप्स मोमेंट भी आया कि फंस गए उनकी बातों में? आया था. इट वाज अबाउट आवर रिलेशंस, इंडियाज रिलेशन विद अनदर कंट्री. The conversation went around that. I won't tell you the details what the conversation was. But it was about foreign relations. And there was an oops moment there. And I didn't know how to react. But ठीक है, that's how it goes. चलता रहता है ये. तो आप गलती तो करो. It was managed well वैसे.
काइंड ऑफ आई वुड से मैनेज हुआ नहीं हुआ पता नहीं, बट इट वेंट स्मूथ, कुछ मेजर ब्लंडर नहीं हुआ। अच्छा, तो बाहर निकल के लगा कि अब क्या होएगा, सेलेक्ट होगा नहीं होगा? नहीं, मैं भूल गया था। अच्छा, मैं बाहर निकला, मैंने कहा डन, जर्नी खत्म। हाँ, होता है तो भी अच्छा है। दैट वाज योर फाइनल टेस्ट जो आपने दे दिया? मैंने कहा हो गया, अब कुछ नहीं है। हाँ, होगा तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कुछ और करेंगे। ओके। सो आई फॉरगॉट अबाउट माय इंटरव्यू, क्या किया क्या नहीं किया। आई हैड सम वेकेशंस प्लान, मैं आई डिड दैट। फिर लकीली उसका रिजल्ट आया। एंड इंटरव्यू का रिजल्ट कब आ जाता है, कितने टाइम में आ जाता है? इंटरव्यू, सो मेरा इंटरव्यू लास्ट फेज में था। मैं फरवरी एंडिंग में इंटरव्यू था मेरा, एंड अप्रैल फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ गया था। अगेन लाइक बिकॉज मार्च से तो इंटरव्यू चलते रहते हैं, एंड लास्ट इंटरव्यू खत्म होता है उसके एक हफ्ते के अंदर फाइनल लिस्ट कंपाइल हो जाती है। जो एस्पिरेंट्स होते हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं उनके मन में, स्पेशली स्टडी मटेरियल को लेके वो बहुत परेशान होते हैं। एनी स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल जो आप एस्पिरेंट्स को सजेस्ट करना चाहोगे, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, किन स्टडी मटेरियल को पिक करना चाहिए? स्टडी मटेरियल का ऐसा है ना अंकुर, कि मेन प्रॉब्लम जो होती है लोगों में, जितना स्टडी मटेरियल है सारा के सारा मार्केट से उठा के ले आएंगे और पूरी घर में ना रैक भर देंगे वहां पे। वो किताबें पढ़नी इनको बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरा पढ़ना ये है कि एक किताब लाओ किसी भी सब्जेक्ट की एंड उसको 10 बार पढ़ो। 10 किताबें एक बार लाके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। सो जो बेसिक बुक्स है हमारी, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, ज्योग्राफी के लिए कोई बुक हो सकती है, इकोनॉमी के लिए कोई बुक हो सकती है। तो एक बार डिसाइड कर लो अपना सोर्स दैट मुझे ये किताब पढ़नी है, एंड देन नेक्स्ट 1.5 ईयर आपको वही पढ़ना है। सो करंट अफेयर्स के लिए pick up a newspaper, it could be any of the leading newspapers in India, study that. पॉलिटी के लिए एक किताब, ज्योग्राफी के लिए जो भी किताब आप चूज कर रहे हैं, एंड देन कीप ऑन रिवाइजिंग देम। रिविजन इज द की। जितना रिवाइज करेंगे उतना आपको व्हाट डू यू से कंठस्थ हो जाएगा सिलेबस। सो दैट्स माय एडवाइस। किताबें बहुत सारी मार्केट में, जो किताब का स्टाइल आपको अच्छा लगे, पढ़ने का स्टाइल जिसको पढ़ के मजा आ रहा है, यू गो फॉर दैट। प्लस कपल्ड विद योर एनसीईआरटीज, 6th से लेकर 12th तक की बेसिक एनसीईआरटीज, यू कैन नॉट स्किप दैट। लीव असाइड एनसीईआरटीज ऑफ मैथ्स बिकॉज इतना काम नहीं आएगी, बट देन बेसिक एनसीईआरटीज लाइक ज्योग्राफी हो गया आपका, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, वो 6 से 12 तक आपको मोर लिस्ट कर लेनी चाहिए। उसके अलावा ज्यादा कुछ सिलेबस है नहीं। हवा ज्यादा बना दिया यूपीएससी एग्जाम का, इतना सिलेबस नहीं है एंड इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। राइट। डिफिकल्टी क्या हो जाती है ना अंकुर, सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है, तो यहां पे स्ट्रेस आ जाता है, प्रेशर आ जाता है। बट पेपर तो सिंपल है ना, क्या ही रॉकेट साइंस पूछ रहे हैं। आई स्टिल थिंक आईआईटी का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो एक्चुअली टफ एंट्रेंस एग्जाम है। यूपीएससी इज हाईली कॉम्पिटिटिव बट नॉट टफ। तो आपने आईआईटी का भी एग्जाम दिया था? दिया था, हुआ नहीं था। उम्मीद तो सबकी होती है। सो a very interesting question, in fact I would say. Few years down the line, अगर आपको कभी पढ़ाने का मौका मिले एस्पिरेंट्स को, so would you love teaching and helping the aspirants to crack UPSC exam? Not few years down the line. Abhi bhi when I meet an aspirant, I get calls from people. So I love mentoring them. Okay. I just fix an hour with them, just get on a call and tell them कि अच्छा ये कर लो, वो कर लो, ये पढ़ लो, इस तरह से करो. So I love doing that. I think it's a great help for aspirants getting it from someone जिसने already UPSC clear कर लिया है, already services में है. तो yeah, and when I get in touch with the aspirant, see their struggle, I remember जो मेरा time था. So that reminds me where you're coming from. Right. So that that makes you humble at times. So that's so nice. But yeah, helping students is always a pleasure. तो सिद्धार्थ अपने क्वालिफिकेशंस के बारे में बताइए, आपकी क्या क्या डिग्रीज आपने की हुई हैं? डिग्रीज तो नहीं, डिग्री करी एक डिग्री। आई हैव डन इंजीनियरिंग। ओके। आई डिड ऑयल एंड गैस इंजीनियरिंग बैक इन 2012 एंड that's my only qualification. I didn't go for post graduation. How was your school life? How were you as a student? A bright student, average student? School life was good. So I started my schooling from an Hindi medium school, and then first time I shifted to an English medium school. I failed. Oh. And then it took me 1 year to cover up, learn English, and frankly,
जब मैं इंग्लिश मीडियम में गया ना, मुझे ABCD नहीं आती थी. अच्छा. तो वहां से मेरे को स्टार्ट करके इंग्लिश सीखी मैंने. And then within a year or two I picked up, and then, but I would say I was a good student. I was good in studies. Eventually after say 8th 9th class I wasn't that good. Okay. Because you get involved with your friends, hanging out, partying, having fun. Teenage wala bhi factor. With that, yeah, that teenage factor comes in, yeah. So, but then I was still, I maintained to be above average at least. Okay. And that was my school life. I was never into sports, never played sports. More or less into studies and hobbies like, calligraphy, creative writing, debates, declamations. I was into all of these things. Drawing, painting. तो सारा स्पोर्ट्स पुलिस वाला बनने के बाद ही किया. That was the first time in my life I got into any kind of physical activity. भागना दौड़ना and all of that, I was like totally new to me. Okay. So पहली बार तो सांसें बाहर आ गई थी भागते. आपका करियर ग्राफ बड़ा डाइवर्सिफाइड रहा है. Like, as I told, we are good friends, तो हमने आपके करियर के बारे में बहुत बातें की हैं. तो कुछ बताइए ऑडियंस को अपने करियर के बारे में. आपने क्या क्या काम किया हुआ है? आपने स्टार्टअप भी किया है, आपने जॉब भी किया है, तो कैसा था वो सारा कुछ? क्या क्या किया आपने? So अंकुर, हाँ, करियर मेरा डाइवर्स रहा है एंड बहुत अनकन्वेंशनल रहा है. अनकन्वेंशनल लाइक एनी अदर, बिकॉज जब मैंने इंजीनियरिंग भी चूज करी तो आई थॉट कि सिविल मैकेनिकल जो रेगुलर इंजीनियरिंग्स है, मैं क्या सब करते हैं, आई डू समथिंग डिफरेंट. सो मैंने कहीं से उठा के ऑयल एंड गैस इंजीनियरिंग ले ली. अच्छा. And the funny story was, somebody just randomly shared a Google fact with me that petroleum engineers are highest paid engineers. I said, okay, engineering कर लेते हैं, I'll mint money. This is something new for me. Yeah, it was new for me, but then the reality hit me कि ऐसा कुछ होता नहीं है. अच्छा. So वहाँ ठीक है, इंजीनियरिंग हो गई. And then, but मुझे लगता है ना अंकुर, and this philosophy has a profound impact on my life. कि आपको जब तक कोई काम दिल से पसंद नहीं आ रहा, like if you really don't love your work, keep changing. And not many people agree with me on that. I've had tough conversations with my family, with my friends regarding this. But eventually I stuck to that. I said जब तक मुझे वो चीज नहीं मिलेगी जो मुझे करनी है. I have that similar feeling. yeah, I know you. Yeah. So that's why I kept on shifting. जो भी नया चीज ट्राई करो, एक्सप्लोर करो. एंड आई थिंक इनिशियली 15-20 years of your life, not 20 but yeah, initial 15 years of your life, your career, you have that risk taking appetite. You have that openness in your mind कि ये भी किया जा सकता है. So why stick yourself to what you have studied conventionally if you feel like doing something else? Like just go for it. So that's why my career graph has been very diverse. अलग अलग चीजें ट्राई करी है. थोड़ा सा बताओगे क्या किस किस फील्ड में आपने काम किया? तो आफ्टर इंजीनियरिंग आई सेड इंजीनियरिंग वाला काम नहीं करना है मेरे को. सो जब मेरा सिलेक्शन हुआ कंपनी में, आई टोल्ड देम कि मेरे को ना वो फील्ड जॉब मत देना. अच्छा. कोई डिफरेंट कमर्शियल एस्पेक्ट वाला जॉब दे देना मुझे. लकीली देयर वाज एन ओपनिंग इन द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट. सो दे सेड यू टेक अ प्रोक्योरमेंट. दे सेड वी फील यू आर अ गुड मैनेजर, सो यू मैनेज ऑल ऑफ दैट. वो किया मैंने. देन उसी के अंदर द गवर्नमेंट रिसेंटली हैड न्यू रेगुलेशंस अबाउट ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट. सो द फिजिकल प्रोक्योरमेंट थ्रू द टिपिकल चिट्ठी वाला बिड दैट वी आर गेटिंग, दैट वाज स्टॉप्ड बाय द गवर्नमेंट. सो दे सेड ऑनलाइन करेंगे अभी सारा. सो देन somebody told me कि इसको आपको इम्प्लीमेंट करना है. सो आई got behind it, implemented the whole online procurement system in the company. Ran it for 2 years. And then at the end of 2 years I said हो गया अभी. अच्छा. अभी it's time to do something else. हाँ. And I had this very dear friend. So I was talking to him one day and he introduced the opportunity of the digital economy. That was like booming that time, like 2012-13. All the startups were coming up and all of that. He said, yeah, this is a good field. And he had been working in the field for a couple of years. So I said, yeah, give it a try. And then I sat with him. I said, कैसे कर सकते हैं, क्या है, कैसा है, कैसा है. So then he introduced me to this fair. काफी टाइम तक उसमें मैंने काम किया. Learned so many things. Build my own stuff.
वो चलते 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 देन आई सेड कि ओके अभी इससे भी मन भर ये गया। हो गया अभी। एंड देन वो बैठे बैठे एक दिन वो आपको जैसे बताया यूपीएससी का थॉट आया, ऐसे हाँ ये चीज रह गई अभी पेंडिंग है। एंड एंड माय वाइफ आल्सो टोल्ड मी एग्जैक्टली द सेम थिंग। ही सेड सिद्धार्थ तुमने लाइफ में ना जो चीज पकड़ी है ना तुमने उसको खत्म किया है, बट ये चीज तुमने बीच में छोड़ दी थी। दैट काइंड ऑफ हिट मी। मैंने कहा ठीक है करके देखते हैं। एंड देन आई थॉट कि ओके लेट्स गिव इट। एंड देन तो ऑयल एंड गैस से डिजिटल इकोनॉमी से लेके पुलिस सब लाइफ चल रही है, which is quite interesting and मैं तो I can relate it like keep changing your field जब तक मजा आना ना शुरू हो जाए। एंड आई थिंक उसके लिए थोड़ा सा करज लगता है अंकुर, है ना? हाँ, कि आपको कुछ सोसाइटी अपोज बहुत सुनना पड़ता है, घर वालों से बहुत सुनना पड़ता है, कर क्या रहा है लाइफ में। एग्जैक्टली। एंड देन से सीरियस नहीं है, स्टेबल नहीं है, कभी कुछ सोचता है कभी कुछ सोचता है, बट देन नॉट मेनी पीपल अंडरस्टैंड कि वो अंदर से कुछ होता है कि यार नहीं आई एम मेड फॉर समथिंग एल्स, राइट। एंड आई थिंक जिस सबको हिम्मत करनी चाहिए वो परसू करने की। आई वुड से वो डिफिकल्ट भी होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, इतना प्रेशर होता है फैमिली का, बहुत डिफिकल्ट बन जाता है वो। कुछ 2-3 बार आप करते हो ना सबको पता है ढीठ है नहीं मानेगा, तो उसके बाद नहीं बोलते हैं। तो वो हो जाता है, बट हाँ डिफिकल्ट होता है, राइट। बहुत सारी चीजें होती हैं, बट करना चाहिए। मैं तो आई एम अ फर्म बिलीवर, करना चाहिए। मैं भी सेम, जिसके पास मौका है करना चाहिए। एंड आई कंसिडर माई सेल्फ लकी दैट गॉड गेव मी द चांस, द करेज to pursue different things, and I'm just glad. How was your childhood? How was IPS Siddhartha as a kid? Naughty, very naughty, or very very naughty? I was fairly a decent kid, not naughty. Very very reserved. ज़्यादा बात नहीं करना। Starting में तो like पढ़ाई हो रही है and all of that. So I wasn't naughty. Reserved. More or less वैसा ही थे हम लोग। Okay. Nothing so fancy about my childhood. Tell us about your hobbies and interests. Hobbies per se, I don't have any. But there's an ideology which is kind of my lifestyle and my hobby as well, which is called minimalism. Okay. So minimalism, if I explain in simple terms, is like आपको monk वाली life भी नहीं जीनी है, and आपको over consumerism पे भी नहीं जाना है. So it's like a very fine balancing point in your lifestyle. So for example, say if you need 5 t-shirts in your life, right? Then don't buy the 6th one. Okay. If you need 10 t-shirts, by all means go ahead and buy. But अगर 5 की जरूरत है तो 5 ही ले लो. And that goes for your car as well. अगर आपको कार एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन के काम आती है, so I don't know, if you like a BMW, buy it. But if you only need for transportation purposes, there are a lot of other cars available in the market. Right. So I follow that as my lifestyle. In my clothing, in my house, everywhere. So you follow minimalism very strictly. Very strictly. In terms of the physical possessions that I have in my life, which are very basic, I don't go on a buying spree. Buying 10 जैकेट खरीद लिए, ये फोन खरीद लिया, वो फोन खरीद लिया, नहीं. जितनी जरूरत है जितना इस्तेमाल कर सकते हो बस। हाँ एग्जैक्टली यार, लाइक लैपटॉप पे मैं 10 साल से चला रहा हूँ, मेरा वो अच्छा चल रहा है, तो लाइक व्हाई बाय इट। तो वो मैं I think it's a very nice and important ideology. Yeah, and what it does Ankur is it declutters you. जो दुनिया भर की नॉनसेंस चीजें हैं ना, वहां से आप डिक्लटर हो जाते हो। अभी सुबह क्या पहनना है, आप आधा घंटा अपन लोग वेस्ट कर देते हैं, ज्यादा है ही नहीं कपड़े, तो उसी में से उठा के पहन लोगे, आपका टाइम काफी बच गया। यूजलेस चीजें जो आप कभी करोगे नहीं, आपने घर में इकट्ठी करके रखी है, आप उसको मेंटेन करोगे, साफ करोगे, ये तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है। आई जस्ट डोंट वांट दैट क्लटर इन माय माइंड, सो दैट्स व्हाई आई कीप वेरी वेरी बेसिक स्टफ, एंड जितना टाइम बचता है स्पेंड ऑन अदर थिंग्स, लर्निंग न्यू थिंग्स, गेटिंग न्यू एक्सपीरियंसेस। That's quite impressive. Yeah, my wife doesn't agree though. Can't help it. तो हर बच्चे की तरह सिद्धार्थ का क्या ड्रीम था एज अ चाइल्ड? बड़े होकर सिद्धार्थ क्या बनना चाहते थे? एक्चुअली हमको कभी पता ही नहीं था कि बनना क्या है। वो होता है ना, आप किसी एस्ट्रोनॉट को देखते हो, आपको एस्ट्रोनॉट बनने का मन करता है,
So मुझे लाइफ में कभी क्लैरिटी थी नहीं कि बनना क्या है. तो दैट्स वाई मैंने कहा फिर नहीं पता तो फिर सब चीज़ बन के देख लेते हैं. सो दैट्स वाई ये बना, जो भी काम किया, इंजीनियरिंग करा, ये करा. सो आई सेड आई ट्राई एवरीथिंग till the time I don't know what I actually want to do in my life. So there was no dream as such. Okay. But yeah, there was a dream to, explore whatever possibilities that I get in life. So in this whole process of trying new things, पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा था जब आपने बोला कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करना है? देखो, जब आप पेरेंट्स को बोलोगे कि यूपीएससी की तैयारी करनी है तो ऑफ कोर्स वो खुश होंगे, बिकॉज इट्स लाइक हमारे इंडियन कल्चर में इट्स लाइक अ ड्रीम फॉर लॉट ऑफ पीपल. सो दे वर हैप्पी एंड माय पेरेंट्स नेवर डाउटेड फॉर अ सेकंड कि इससे नहीं होगा. दे काइंड ऑफ न्यू कि इफ ही पुट्स हिज थॉट्स एंड आईज ही विल डू इट. एंड दैट सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. या पेरेंट्स का सपोर्ट होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ. या ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसके साथ साथ सिर्फ यूपीएससी देने का फेज आपका स्टार्ट होता है 23 चॉइस के साथ से. सो अपार्ट फ्रॉम द मॉरल सपोर्ट दैट यू गेट फ्रॉम योर फैमिली, आई थिंक एवरी एस्पिरेंट शुड थिंक अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एज वेल. इट्स नॉट लाइक कि आप 6 साल 7 साल आप तैयारी करते जा रहे हो एंड देन देयर इज नो फाइनेंशियल प्रैक्टिकल होना. वो प्रैक्टिकलिटी आपको आनी पड़ेगी बिकॉज वो भी एक आपकी लाइफ का पार्ट है. राइट. सो बट ये सारी चीजें आपको एटलीस्ट मैनेज करो ना करो, एटलीस्ट थॉट जरूर देना चाहिए इसके बारे में. Who was your biggest support system? ऑफ कोर्स माय फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ. फैमिली में भी होता है ना एक, या पापा ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, मम्मी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं था. मतलब सपोर्ट तो एंटायर फैमिली का था, सबका था. हाँ. एंड सबका अलग अलग टाइप का सपोर्ट होता है ऑफ कोर्स, बट देन आई डोंट थिंक बिना उनके पॉसिबल हो पाता. माय यंगर ब्रदर, मॉम, डैड, वाइफ, सबके लाइफ में एक इंसान होता है जो बहुत मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत तरीके से आपके लिए सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हो वो आपका मेंटर भी होता है. हाँ. तो आपकी लाइफ में वो इंसान कौन था? फॉर मी माय मेंटर इज माय फादर. I've seen him do things in life, and I think जो मेरे अंदर ये क्वालिटी आई है, क्वालिटी बोलो या आप कुछ भी बोलो कि नई नई चीज ट्राई करने की, आई थिंक आई गेट दैट फ्रॉम माय फादर. Okay. Conventionally, my father is an electrical engineer, and kind of he never, maybe did not like that part, the electrical engineering part, and he was always fascinated by design and drawing and imagination, the creative part. Okay. And then he got into architecture. Oh. From electrical engineering. And the weird part is not just regular architecture. His niche is temple construction. Oh. And he loves it so much, he's built a career out of for himself. So when you see a person like that in your life, you get inspired to do things which you cannot imagine. Right. My father never thought he'll be designing temples. Okay. And I think he's my biggest source of inspiration. So how is your life as a police officer? Life is good. It's tough because the nature of job is tough. But I like it. Working hours थोड़े और हो जाते हैं कभी, you have to leave in the night, there's patrolling. Crime का तो time होता नहीं है, कोई time देख के crime नहीं करता, so then we have to be on the spot. There can be law and order issues, तो आपको you have to be on your toes all the time. It's tough, but then it's very satisfying. That instant gratification that you get when you help somebody who's come to you, because police is the last resort, right? किसी की लाइफ में अगर कहीं से हेल्प नहीं मिल रही है तो वो पुलिस के पास आता है. Right. So when police is able to help such a person, that feeling is like very very nice feeling. आपको लग रहा है कि आपके लिए किसी की हेल्प करी है आज, एंड उस हेल्प की वजह से हो सकता है उसकी लाइफ में बहुत मेजर चेंज आया होगा. सो लाइफ इज गुड. तो ऑडियंस को आप बताओगे अपनी पोस्टिंग के बारे में. वेयर वाज योर फर्स्ट पोस्टिंग? वेयर आर यू करंटली पोस्टेड? So my first posting was in a very interesting district called Kokrajhar, which is a part of Bodoland. And Bodoland has been notorious for a lot of insurgency activities, and that was my first posting. So I was scared because, of course, there was insurgency. But then we learned a lot, handled variety of cases, different themes, different types of crimes, and it was a good learning. I mean,
Your eyes open up to a lot of things. And the best part, that you get exposed to such wide variety of people which you never thought you'll ever meet in your life. आप जंगल के अंदर जा रहे हो, ट्राइबल्स कैसे रह रहे हैं, हाउ आर दे कैरिंग आउट देयर डे टू डे एक्टिविटीज, उनकी लाइफ की क्या प्रॉब्लम्स हैं. हाँ, इन थ्योरी यू नो एवरीथिंग, आपने किताबें पढ़ी है, आपने बुक्स पढ़ी है, न्यूज़ पढ़ी है, आपको पता है. बट जब आँख से देखते हो आप तो बहुत ज़्यादा अलग एक्सपीरियंस होता है. सो एक्सपोजर इज ट्रेमेंडस. So ये question थोड़ा I don't know if I should ask you or not. How is friend and family taking you as a police officer? They're excited, of course. अलग जोन में आ जाते हैं. If you know what I mean. But yeah, they are very happy. They feel proud, that one of our friend is into the services. And I really like that, when your family or your friends appreciate you, it gives you a lot of good feeling. तो कुछ पुलिस का रुतबा नहीं दिखाते दोस्तों के सामने? मुझे मारने को आएंगे वापस वो लोग. सिद्धार्थ, आप एस्पिरेंट्स के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बिकॉज आई हैव हर्ड अ लॉट, इंटरनेट इज फ्लडेड विद न्यूज. कुछ लोग सालों साल तैयारी करते हैं, सक्सेस नहीं मिल पाती हर किसी को. बुलिंग होती है, फैमिली से बहुत ज्यादा शेम फील कराया जाता है. कुछ लोग उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि वो सुसाइडल फील करने लगते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं. सुसाइड्स के भी बहुत सारे न्यूज आते हैं. तो एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू देम? या, सो आई हैव वेरी सिंपल मैसेज फॉर एवरीबॉडी. अगर आपको सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना है तो पहला मैसेज ये है कि वो ड्रीम आपका होना चाहिए, वो सोसाइटी का ड्रीम नहीं होना चाहिए आपके लिए. So if you decide that you actually want to get into this exam, तब आप आइए. Secondly, अगर आप इस एग्जाम में आ रहे हैं तो ना इसको आप लाइफ एंड डेथ वाला गेम मत बनाइए कि ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, एंड यही मेरी जिंदगी का सपना था, सब टूट जाएगा, एंड ऑल ऑफ दैट. दैट्स ऑल ड्रामा. लाइफ में सिविल सर्विसेज के अलावा बहुत अच्छे अच्छे करियर ऑप्शंस और भी होते हैं. यू कैन become a good painter, you can become a good singer, you can become a good corporate employee, you can have your own startup. World is full of opportunities. Why restrict yourself to one career path which at times is not even your own decision? Okay. So that's precisely my message. And जब भी आप यूपीएससी की तैयारी करें, बिना टेंशन के, खुश रह के, मस्त होके पढ़ाई करेंगे. Like any other exam. मतलब निकला नहीं निकला तो आप कुछ और कर सकते हैं. एंड अगर आप इस अप्रोच से पढ़ेंगे तो वो जर्नी बहुत इजी हो जाएगी. जैसे मेरे लिए बहुत इजी थी, बिकॉज मेरे को पढ़ने में मजा आ रहा था, एंड आई वाज़न्ट टू वरीड कि ये नहीं होगा तो क्या करूंगा. यार पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन करिए, कुछ तो कर ही लेंगे. तो अगर ये एटीट्यूड रखेंगे ना तो आपकी जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगी. सिद्धार्थ, आई थिंक मेरा जो पर्पस था आपको वाई ओनली फेमस पे बुलाने का, और जो मैं जानना चाहता था आपसे, जो मैं ऑडियंस को बताना चाहता था, आपका एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करना चाहता था, स्पेशली द एस्पिरेंट्स, जो देयर आर सो मेनी एस्पिरेंट्स वर्किंग रियली हार्ड, और बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में. आई थिंक यू हैव गिवन अ गुड आंसर टू ऑल देयर क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच, सिद्धार्थ. Thank you. Really nice. It was a great Same time here. having you. All those who are watching this video, make sure that you share this video with all the aspirants who are preparing for UPSC exam. It will really help them a lot. So this was the end of episode 2 of WOF. Like, subscribe and share our channel, and stay tuned for such more exciting episodes. We'll come soon with the episode 3. Thank you.